नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौआयर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभावनिदाता। परमात्म प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्म प्रकाशનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। એમાં આપણે 73મી ગાથાનો સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છીએ। આચાર્ય ભગવાનની 73મી ગાથા, એનો અનુવાદ તથા એનો ભાવાર્થ આપણે કર્યા છે અને આ ગાથાઓ પર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે એનો થોડો ભાગ કર્યો છે। હવે આજે એ આગળ લઈએ તે પહેલા સહેજ પુનરાવર્તન કરીએ અને પછી આજે આગળ 74મી ગાથા શરૂ થશે એટલે એ ગાથા પણ આપણે લઈએ। પહેલા આપણે ગાથા 74 લઈએ છીએ। 74મી ગાથાના ઉपोद्घातમાં કહે છે कि आगे ज्ञानमयी परमात्मा से भिन्न पर द्रव्य को छोड़कर तू शुद्ध आत्मा का ध्यान कर, ऐसा कहते हैं। गाथा 74। आत्मानं मुक्त्वा ज्ञानमयम् अन्यः परः भावः तं त्यक्त्वा जीवत्वं भावय आत्मस्वभावम्। 74મી ગાથાના અનુવાદમાં કહે છે કે જીવ ત્વમ જ્ઞાનમયમ, હે જીવ તું જ્ઞાનમયી, આત્માનમ मुक्त्वा, ज्ञानमयी आत्मा को छोड़कर, अन्यः परः भाव तम छंडयित्वा, अन्य जो दूसरे भाव है उनको छोड़कर, आत्म स्वभावम भावे, अपने शुद्धात्म स्वभाव को चिंतन कर। हे जीव तू ज्ञानमयी आत्मा को छोड़कर अन्य जो दूसरे भाव है, आत्मा के भाव के अलावा जो दूसरे भाव है वो अन्य दूसरे भाव है। जो आत्मा के भाव नहीं है वैसे भाव अन्य दूसरे भाव है, तो उनको छोड़कर, वो अन्य भाव को छोड़कर अपने शुद्ध आत्म स्वभाव को चिंतन कर, उसका ध्यान कर। गुजराती में गाथा लईए। ज्ञानमयी आत्मा विना अन्य सकल प्रभाव, देह तजी जीव भाव तू निज सहज आत्म स्वभाव। एना अर्थ में कहे छे कि हे जीव, एक ज्ञानमय आत्मा सिवाय जे अन्य पर भाव छे तेनो त्याग करीने निज शुद्ध सहज आत्म स्वरूपनी भावना कर। ज्ञानमय आत्मा छे अने एनो जे भाव, ए भाव सिवाय बीजू बधुं एनाथी जुदू भिन्न छे अने एमां साक्षात तीर्थंकर भगवान केवली परमात्मा होय तो पण एनाथी जुदा छे, भिन्न छे, तो एमना तरफनो भाव ये पण शुद्ध भाव छे। एटले एम एकमात्र ज्ञानमय आत्मानुं लक्ष्य करीने जे पोतानो भाव छे ए भाव सिवाय बीजा बधा भाव अन्य भाव छे, ए अन्य परभाव छे, ए परभावनो त्याग करी અને નિજ શુદ્ધ સહજ આત્મ સ્વરૂપની ભાવના કર, એટલે કે એકાગ્રતા કર। ભાવનાનો અર્થ થાય છે એકાગ્રતા। આગળ વિસ્તાર કરતા સમજાવે છે
કે કેવળ જ્ઞાન આદિ અનંત ગુણોનો અખંડ પિંડ એવો આ આત્મા છે. અનંત ગુણ કયા? પણ અનંત ગુણ દ્વારા ભગવાન આત્મા ખંડિત નથી થતો. એક એક ગુણ એમ કઈ નથી. એ ગુણ છે, શક્તિ છે, એ તો વસ્તુ અખંડ અભેદ છે, એમાં રહેલી છે. અને એના પ્રદેશ પ્રમાણે અસંખ્યાત પ્રદેશ કહીએ તો દરેક પ્રદેશમાં એ શક્તિ ભરેલી છે, દરેક પ્રદેશમાં ગુણ ભરેલો છે. એટલે એ અનંત ગુણ એ કઈ એક એક જુદા છે, જુદી જુદી જગ્યાએ આત્માના પ્રદેશમાં રહ્યા છે, એવો કઈ અર્થ નથી. પણ સમજાવવું છે એટલે ભેદ પાડીને એમ કહેવામાં આવે, ગુણનું વર્ણન કરે ત્યારે કે જ્ઞાન ગુણ, દર્શન ગુણ વગેરે, પરંતુ વસ્તુ તો અખંડ અભેદ છે. એ છે કે કેવળ જ્ઞાન આદિ અનંત ગુણોનો અખંડ પિંડ એવો આ આત્મા છે. તે જ પોતાનો છે. તેથી મિથ્યાત્વ આદિ પરભાવ તજીને એક કેવળ જ્ઞાનાદિ અનંત ચતુષ્ટયની પ્રગટતા રૂપ કાર્ય સમયસારનો સાધક જે અભેદ રત્નત્રય રૂપ કારણ સમયસાર છે, તેમાં પરિણમેલો શુદ્ધ આત્મા જ ઉપાદેય છે. શુદ્ધ આત્મા જ ઉપાદેય છે કે જેનું લક્ષ્ય કરતા કેવળ જ્ઞાન આદિ અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ થાય છે. સર્વજ્ઞ ભગવાનને અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય એવા અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ થાય છે ને. તો એવા શુદ્ધ આત્મા નું લક્ષ્ય કરતા જે અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ થાય છે, તો એ શુદ્ધ આત્મા જ ઉપાદેય છે. અને એમાં થોડીક વધારે વાત અહીંયા લીધી છે કે એ ચતુષ્ટયની પ્રગટતા રૂપ, એ ચતુષ્ટયની પ્રગટતા રૂપ, અનંત ચતુષ્ટયની પ્રગટતા રૂપ કાર્ય સમયસાર નું સાધક જે અભેદ રત્નત્રય રૂપ કારણ સમયસાર છે, તેમાં પરિણમેલો શુદ્ધ આત્મા, એ શુદ્ધ આત્મા જ ઉપાદેય છે. કાર્ય સમયસાર અને કારણ સમયસારની વાત નિયમસારમાં ઘણી આવી છે. એના આપણે ઘણા સ્વાધ્યાય પણ કર્યા છે. આજે ફરીથી વાત આવે છે અને પૂજ્ય ગુરુદેવ કાનજી સ્વામીએ એનો વિસ્તાર પણ કર્યો છે. તો આ રીતે આ 74મી ગાથા છે, એનો વિસ્તાર સમજીએ પહેલા 73મી ગાથા છે એનું સહેજ પુનરાવર્તન કરી લઈએ. 73મી ગાથામાં ગાથાર્થની વાત થઈ ગઈ છે. હે જીવ, કર્મથી કરાયેલા રાગાદિ ભાવ અને બીજા અચેતન દ્રવ્ય જેવા કે શરીર આદિ એ સર્વ નિશ્ચય નહીથી જીવ સ્વભાવથી જુદા છે એમ જાણ. એનો વિસ્તાર ગુરુદેવે કર્યો છે અને હજી વધારે આગળ વિસ્તાર આવશે. 73મી ગાથામાં અહીંયા ભેદ જ્ઞાનની વાત છે. કર્મથી કરાયેલા રાગાદિ ભાવ એટલે કે કર્મના નિમિત્તે થતા રાગાદિ ભાવ અને બીજા અચેતન દ્રવ્ય એ બધું નિશ્ચયથી તો જીવના સ્વભાવથી જુદું ભિન્ન છે એમ જાણ. તો એ વિસ્તાર પણ આપણે પહેલા લઈશું. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ બીજો, વર્ડ ટુ વર્ડ, એના પાના નંબર 301 ઉપર ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં ગુરુદેવ આગળ વાત સમજાવે છે, તે આપણે લઈએ છીએ. ચારિત્ર ન હો પણ ચારિત્ર સહિત જે દિગંબરપણા है એ તો અલૌकिक बात है. ये तो यहाँ ये कहा जे तीन कषाय का अभाव हो, उभा उभा हार हो, ऐसे उभंसण दंसण. क्यों कहा कि पात्र न हो उसको. पात्र न हो तो वस्त्र पण न हो. वस्तु पात्र न हो तो उभा उभा खड़ा लेना है उसे. अंतर में आनंद का झूलना है.
तीन कसाई का अभाव से अतीन्द्रिय आनंद में झूलते हैं और अतीन्द्रिय आनंद का मोर छाप मुनिपना में है। सतह व्यवहार में पंचमहावर्त का विकल्प आता है, खड़ा हार देने का भाव होता है, ऐसे कह करके पात्र में वस्त्र नहीं होता उसको। समझ में आया? इसको जैन दर्शन कहते हैं। वो तीन कसाई का तिथि क्या है ना, આમ હાથમાં ખાય कहीं थोड़ा ही नहीं, ऐसे बराबर करे तो बराबर। अरे तो उसकी योग्यता ऐसी होती है। जो ने भगवान का 10वां भाव सिंह का, महावीर प्रभु का 10वां भाव सिंह, हम हरण में हम छाप मारते थे, ऊपर से मुनि चला है, तो ऐसे उसकी वृत्ति ऐसे हो गया, आ क्या है, हम है यहाँ से मानस नजीक हो तो दूर चले जाता है, पशु नजीक हो दूर चले जाए, ना ऊपर से नीचे मेरी पास नजीक आया, आ क्या, ऐसे हम वृत्ति थम गए। और मुनि ऐसे कहते हैं कि समझो कि सिंह कई भाषा में समझा, मुनि कई भाषाएं ही योग्यता तो देखो। इसी वो मुनि ऊपर में चले जाते थे विद्यार्थी ने, क्या कहते हैं कि उसकी योग्यता कैसी हुई कि मुनि की भाषा समझ गई। समझ में आया? मुनि की भाषा तो उसकी ऐसे होगी, कौन पात्र है तो ऐसे समझ में आ गया। ओहो, मेरे से दूर जाते हैं, वो मेरे से नजीक आए के खड़ा हो गया, ऐसी बुद्धि में निर्मलता हो गई। तो जो कई मुनिराज कहते हैं, अरे सिंह प्रभु त्यों तो 10वां भाव में तीर्थंकर होने वाला है। ये भाषा के समझ गए। देखो तो खरा क्या कहते हैं, प्रभु तो 10वें भाव में तीर्थंकर होने वाला आ क्या, गमे की भाषा बोली जाऊंगा, समझ गई। बराबर आंख में से आंसू नहीं था, ऐसे आज बेपग नीचे बेपग से आंख में आंसू धारा, वो समय जाति सुनता है, सिंह को जाति હવે हरण मार के खाते हैं त्या जाति समान। अरे भैया परिणाम पलटते वार के पीछे। समझ में आया? अजी तो खाते हैं, पेट में थोड़ा पड़ा होगा। प्रभु तुम महावीर है, प्रभु तुम 10वें भाव में तीर्थंकर होने वाला, हम केवड़ी पासे सुना है। समझ में आया? कैसे भरोसा हो गया, कैसी बात कही होगी। आंसू ही धारा चाली जाए। अरे भगवान परमात्मा अपना आत्मा उससे में भीन रहा, आंख करते एकदम गनाट खाई जाता है, गनाट समझे, पलटा खाई जाता है, खराब दिन पलटा। मानस कहते हैं ना कि भाई 100 उंदर
मारने मीली पाटे बैठी एम हवे उंदर मारे पहले पर पीछे पलटा खाते वार कितनी है समझ में आया। वो यहाँ कहते हैं हाँ तो मुनिपना की बात है। यहाँ चलते हैं वो सम्यक दर्शन सहित चाहे मौखिक मार के चलते हैं परमात्मा का। दूसरे में है ना वो सूत्र पाव नहीं 14 उत्तर पाव 14 हरित पाव गरम प्रत्यय उत्साह है भावना भावना सम प्रश्न के प्रशंसा सेवा सुदंशने सम्यक दर्शन की जीव को सम्यक दर्शन में उत्साह होता है, भावना होती है, प्रशंसा होती है, स्वरूप की सेवना होती है। न जो ये जिन मत समतम ये जिन संकेत को नहीं छोड़ेगा। जिसको परमत में उत्साह भावना सेवना है विचारदर्शी संकेत को छोड़ते नहीं। समझ में आया। अन्य मत में जैन दर्शन सिवाय चाहे तो गमे ते दर्शन हो वो प्रत्यय उत्साह हो जाना, प्रशंसा होना, समझ में आया, भावना हो जाना, उसकी सेवा सम्यक दर्शन से गमन हो जाता है, मीठा दर्शन हो जाता है। समझ में आया। 13-14 हो बहुत पावर 14 है जो 14 आगे दर्शन का स्वरूप कहते हैं। दर्शन किसको कहते हैं? जैन दर्शन किसको कहते हैं? दंसई मुख मगंग समतंग संयम सुधमंग निगंतंग ज्ञानमयंग जीर्णमग्गे दंसन गणिय। જે દર્શન માર્ગમાં સંકિત સંયમ જ્ઞાન સહિત હો જ્ઞાનમય ગયું અને નિરંતમ निग्रंथ दशा राग की गांठ नहीं अंदर में बाई को वस्त्र पात्र नहीं जैसे समझ में आया। देखो निगन दम से दूम मुखमगं समत्तम संयमं सुगम पचिन्नानमयम निगंथम नानमयम जिणमग्गी दंसन गण्यम। जिन मार्ग में उसको जैन दर्शन कहते हैं। बहुत 14 समझ में आया। उनको आचार्य को एक ग्रंथ में बहुत बात कर दिया है। गंभीर 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 यहाँ आया मिथ्या। देखो आज 5 मिथ्यात का भाव का अभाव तो केवल में होता है। केवल में भी जोग तो रहते हैं। ऐसे नहीं सुन तो सही कहते हैं। पर्याय में 5 भाव है उसकी दृष्टि उठ गई हो अभाव सर्वथा 14 में हो जाएगा। पर दृष्टि में से उसे हटा लिया। मिथ्यादि पर्याय में 5 मिथ्या भाव था वो तरफ से निवृत्ति ले लिया। अंतर में जाने को उसे निवृत्ति ले लिया। पलटा आयन कहते हैं। समझ में आया। 5 भाव से निवृत्ति गजब है। सम्यक दर्शन में योग से भी निवृत्ति है हमसे। प्रमाद से निवृत्ति है, कसाई से निवृत्ति है, हमसे उसमें सब में निवृत्ति है। ऐसे समय में उस समय शोधात्मा ही उपाधि है। अंतर में एक क्षण निर्मल परिणति वितराग के काल में ये मिथ्याद आदि की पर्याय से परिणाम पलटा खाकर ये परिणाम ने निर्मल में काल में परमात्मा आदर किया। आत्मा का आदर वो काल किया।
ये वो काल में आत्मा का सत्कार किया। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। अनादि से अनादर करते थे, वो तो कहा ना पहले कि जिसको मिथ्या तो ठीक पर राग की रुचि है, ये मिथ्यात है। गुण परिणाम का राग है, उसकी रुचि है, मिथ्यात है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे मिथ्यात के काल में, राग रुचि के काल में भगवान आत्मा ये है। समझ में आया। हाँ, स्त्री कुटुंब परिवार राज पाठ विषय भोग, इसमें जिसको सुख बुद्धि है, हाँ हाँ हाँ, उसने आत्मा ही हो गया उसको। पठन पाठन की रुचि राग की रुचि हो, पठन पाठन का विकल्प आता है, पर ये रुचि में हो कि आज चीज ठीक है, उसको आत्मा चाहिए। पठन पाठन ही शुभ भाव है। देखा नहीं क्या क्यों सुनिए आपने अष्टपाउल ने नियम सर कलश टीका, पठन पाठन भक्ति स्तुति वंदन ये सब शुभ भाव है। कलश टीका में है ना? क्या खबर नहीं है? 100 निवासी पाना कलश 100 निवासी, ये कहीं तो पहला आई आया 100 निवासी कलश। चलो निकालो, कोई लिख लिया है। पठन पाठन स्मरण चिंतन स्तुति वंदना इत्यादि अनेक क्रिया रूप विकल्पों ये विष समान ठहर है। विष प्रणीतम है, प्रतिक्रमण व्याख्या है। प्रतिक्रमण के काल में जो शुभाओं को झेर कहा है मोक्ष मार्ग में, मोक्ष अधिकार में, समय सार में शुभ भाव को तो विषकुंभ कहा है, झेर का घरा। ओ तो जैसे विषकुंभ का भाव जो शुभ है, उसकी जिसको रुचि है, उसको भगवान अनाको आनंद का नाथ तो यही करते हैं, ये छोड़ देते हैं दृष्टि में से, वो छोड़ देते हैं। तेरी कीमत नहीं, मेरे तो शुभ भाव की कीमत है। ज्ञान जी त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर जो कहते हैं, ये संतों कहते हैं। ये तो कह जीर्ण अपने अनुकूल काले रमेश में जीर्ण वर्ण गणेश है 68 गाथा परमात्मा प्रकाश जीर्ण એવું ભણે कि आज जीव बंध ने मोक्ष का परिणाम का करता नहीं। भगवान एम कहते हैं कि बंध ने मोक्ष ना परिणाम और बंध मोक्ष का कारण रूप परिणाम उसका जीव ही करता नहीं, इसको जिनवर जीव कहते हैं। 68 का समय परमात्मा प्रकाश समझ में आया है ना? आइए चलते हैं। बजई नवी मरई बंधु न मोको करे जीव पर मथे जोगिया जिणवरो यूं भणी। जिणवर एम कहते हैं कि आत्मा जी आत्मा को बंधने मोक्ष का परिणाम करे नहीं, इसको हम जीवन आत्मा कहते हैं।
नवी उपजे नवी मरे उत्पाद पर्याय में आता नहीं द्रव्य जीव जन्मते नहीं प्रभु मरते नहीं प्रभु अने बंधु मोखो न करी जीवो जिन बार उसको जीव कहते हैं। ये दृष्टि का विषय इसको जीव कहते हैं। समझ में आया? हाँ। अरे इन्हें कीमत कहती प्रभु को नहीं। हाँ कहते हैं परमार्थ है जीव इसको के हे योगी किसने कहते हैं? प्रभाकर भट्ट से योगेंद्र देव कहते हैं हे योगी जनवर એવું ભણે ત્રણ લોકના નાથ દેવ ધનીમાં ऐसे कहते थे कि हमें इन्हें जीव कहते हैं कि जीव બંધના મોક્ષના પરિણામ અને મોક્ષના માર્ગના પરિણામ બંધના માર્ગના પરિણામ करे नहीं उसको हम जीव कहते हैं। परिणाम करे नहीं सुखी ऐसा है भगवान तेरी क्या बलियारी नाथ तू कैसी चीज है तेरी खबर नहीं बाहर में तेरी पैसा थे धूड़ मળી कई पाप ना परिणाम पुण्य ना परिणाम थे लो हो कषाय अग्नि में बળી गया है। भगवान आत्मा एकलो शांत रस अतिशय रस वितराग रस ज्ञान रस आनंद स्वरूप ऐसे भगवान आत्मा जिसने ये 5 पर्याय का निवृत्ति होकर अंदर में हो सम्यक दर्शन में 5 से निवृत्ति होकर सर्वथा अभाव नहीं तो उससे निवृत्ति लिया। समझ में आया? हाँ जो ने परमात्मा प्रकाश अरे प्रभु आग्रह से ना क्या है कि व्यवहार से हाँ होता है प्रभु तो जहर से नहीं अमृत होता है। कोई कहते थे पिछते व्यवहार करते करते तो नीचे होगा ना परंपरा राग जहर करते करते अमृत होगा वो तो दूसरी चीज है। प्रभु ये तो आत्मा जिसको अनुभव में आया है उसको शुभ भाव जो होता है ये शुभ भाव के काल में भगवान आत्मा को स्वभाव का अनुभव है वो कारण अशुभ से निवृत्त है अने शुभ से पीछे निवृत्त होगा अभाव करेगा वो अपेक्षा से परंपरा कहने में आया है। समझ में आया है? व्यवहार नहीं का वचन है। हाँ ये जाती है तीन है ना भाई आता है होता है पर उससे आत्मा को लाभ है नुकसान करने वाला है। अरे क्या जाऊं प्रभु कार्य क्या शिवानंद भगवान भाषा कैसी परमात्मा प्रकाश में भाषा इसलिए कि उस समय शुद्ध आत्मा उपाधि आभाषा में गाथा में दरेक में मौत लेता है। जिस समय में सम्यक दर्शन का परिणाम पर से हटा ने स्वभाव सन्मुख हुआ वही काल में आत्मा है ऐसा माना उसका स्वीकार किया उपाधि माने। समझ में आया? एक प्रश्न हुआ था ना प्रभु आत्मा कारण परमात्मा है ना तो कारण प्रश्न हुआ था यहाँ त्रिभुवन भाई वारिया विजय भाई जी के कि कारण परमात्मा कहो तो कार्य तो आना ही चाहिए। कारण परमात्मा है आत्मा वस्तु है कारण परमात्मा आएगी पीछे हो अभी आएगा कार्य संविधान कारण ये 34 में आएगा
જ્યારે તમે ऐसा कहो प्रभु आत्मा तो अनादि अनंत ध्रुव कारण परमात्मा है, तो कारण हो तो कार्य आना ही चाहिए। तो कारण परमात्मा है न कार्य क्यों नहीं आता? ऐसा प्रश्न किया राजकोट वीरजी भाई जामनगर, ये वीरजी एजुकेशन सुनो, भगवान ये कारण परमात्मा है, इसको जिसको स्वीकार हुआ इसको जिसको कारण परमात्मा की दृष्टि हुई इसको कारण परमात्मा है, इसका माना नहीं जाना नहीं कारण परमात्मा कहां से आया उनको? समझ में आया? आत्मा को कारण जीव कहते हैं, कारण परमात्मा कहते हैं, कारण जीव कहते हैं। पर कारण है तो कार्य आना चाहिए, पर किसको? एक कारण भगवान त्रिकाल है, ऐसी जिसको दृष्टि हुई है, इसका स्वीकार किया है, उसको कारण परमात्मा है, और उसको सम्यक दर्शन हुए बिना रहे नहीं। हाँ हाँ हाँ, कारण परमात्मा को ढूंढना चाहिए। ढूंढ पड़ा है क्या? दृष्टि पलटना है, दूसरी कोई ढूंढना है कि बाहर से नहीं आता है? हाँ हाँ, समझ में आया? આ તો જીનવર માર્ગ બાપુ અને તે દિગંબર દર્શન એમાં કુંડા કેળાય કેવડીના કેળાય છે ભગવાનનો માર્ગ आरतिया होकर दुनिया पास कहते हैं हमको माला आस है भगवान का। इतना शब्द में इतना भरा है मैंने। 40 मिनट थी उसमें। मिथ्यात अविरत प्रमाण ऐसा योग निवृत्ति रूप परिणाम है। योग का कंपन की बुद्धि खसी उठ गई है। कंपन हो, राग हो, पर उससे रुचि निवृत्ति हो गई है। समझ में आया? उस समय शुद्धात्मा उपाधि है। ये 73 हुई 74। आगे ज्ञानमय परमात्मा से भगवान तो ज्ञानमय आत्मा, आनंदमय ज्ञानमय। ज्ञानमय कहने में मुख्य ज्ञान है न, ज्ञान अपने को जानते हैं और पर गुण को जानते हैं। पर गुण ही अपने को जानते नहीं, सम्यक दर्शन चारित्र आनंदी अपने को जानते नहीं, पर को जानते नहीं, अस्तित्व रखते हैं। यानी ज्ञान का अस्तित्व है न, ज्ञान स्वपर को जानते, इतनी उसकी ताकत है। समझ में आया? ज्ञानमय जितनी ऐसे क्यों कहा कि ज्ञान स्वरूप ऐसी चीज है कि अपने को जाने, है ऐसा जाने, पर को है ऐसा जाने। ये दर्शन चारित्र आनंद अस्तित्व इसमें ही शक्ति नहीं, हमें है ऐसा जानने की शक्ति उसमें। समझ में आया? वो कारण अज्ञानमय या परमात्मा में कहा, नहीं तो अनंत गुणमय है। ज्ञान आएगा हमारा टीका में। छताई ज्ञान भगवान ज्ञान स्वरूप था। જે જ્ઞાનની સાથે અવિના ભાવ અનંત ગુણ रहा है, એટલે કે આ જ્ઞાન है તે अनंत गुण है, अनंत गुण है ते ज्ञान है। ऐसा होने पर भी ज्ञानमय आत्मा ऐसा कहने में बिन उससे बिन परद्रव्य को छोड़कर क्यों शुद्धात्मा का ध्यान कर प्रभु। शुद्धात्मा जानी लेना शास्त्र से ये नहीं, ये शुद्धात्मा का ध्यान कर। समझ में आया? शास्त्र से सुना तुमने क्या आत्मा
शुद्धात्मा है, ज्ञानमय है, वो विकल्प से जान लिया वो चीज नहीं। अंतर में जाकर परद्रव्य को छोड़कर शुद्धात्मा का ध्यान कर, चारे बाजू से विकल्प को हटाकर, भगवान पूर्णानंद प्रभु तुम है, वो ध्यान का विषय बनाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान का विषय उसको बनाओ। वो तो खरा तो ध्यान विषय करो। अध्यात्म तरंगनी भाई, अध्यात्म तरंगनी છે ને सबके कम है। हमें तो वास्ते वास्ते के ऐसा बोलो कि हमसे निकल जाओ। हजारों शास्त्र देखकर एक वारंवार क्या बात है। ज्ञान विषय करो ऐसा सुनाए क्या परम अध्यात्म तरंगनी है ना, कलस्टिका राजमल के है, तो शिवचंद्राचार्य के कलस्टिका संस्कृत सारी। ज्ञान विषय करो प्रभु तेरे ध्यान में ले ले तू आत्मा, ध्यान ले નથી કહેતા જ્ઞાન રાખ, એમ કહેते कि ध्यान राख, आई कहते कि ध्यान राख किसका तेरा। ये तो कहते हैं ना कि विकल्प से पहले जानना में आते हैं, नए निक्षेप प्रमाण से विकल्प से जानने में बनाता है, पर वो चीज नहीं। 13वें क्या समाया ना 100 पहले नई से नीचे से व्यवहार से अनुमत से भिन्न भगवान क्या कहते हैं ऐसा जानने में नई से जाने, निक्षेप से जाने और प्रमाण से जाने, पण छते ये अभूतार चीज है उसमें। 13वीं गाथा में है भूयत्थेनाभिगता जीवा जीवा नई का विषय शांति साझा थे, तो वो गाथा कि क्या गाथा कही तो ये लोग ने प्रमाण की गाथा है कि मूल अभ्यास तत्व नो अभ्यास नहीं, ये गाथा है निश्चय नई की। समझ में आया? नव तत्व में स्वयं अन्वय रहने वाला भगवान आत्मा ही भूतार्थ है। जीव जीव पुण्य पाप आदि नव तत्व है ना, क्रिया है, सब में एक रूप अन्वय रहने वाला समान और जीव है। ये जीव की क्या व्याख्या है? भूयत्थेना अभिगता बोले नाम आया खरा नव, भूयत्थेना अभिगता जीवा जीवाई पुनः पावा 13वीं गाथा में। वो तो व्यवहार नो विषय बताया, पर उसका जानने वाला पदार्थ एक ही आत्मा है। अन्वय तरीके कल कहा था ना 85 इकाई में ऐसा दिया है, एक श्लोक पहले 85 पहले श्लोक है जीवा जीवादि पर्याय रूपाणाम चित्रवतम नाम भाषा जरी जूनी है। तत्व नव पदार्था नाम व्यवस्था प्रतिपादिता पहले सूत्र करता है। बीजा अधिकार में जीव जीव बे पर्याय नो नव पदार्थो जीव जीवनी बेनी नव हाथ पर्याय ऐसा नव लिया ने। ये नव पदार्थों ने जेमना मार्ग जिसका मार्ग कार्य भिन्न भिन्न प्रकार का है, नवी तत्व का कार्य भिन्न भिन्न प्रकार का है। आश्रव पुण्य पाप बंध संबंधित नवे नु भिन्न कार्य श्लोक है चित वर्मम चित वतमम એટલે શું આનો વિચિત્ર માર્ગ। પાંચમો શ્લોક है 85 राय
श्लोक नंबर 5 पहले कलश कलश गाथा नहीं हाँ तो शुरुआत किया ने 5वां श्लोक नव तत्व का नवी का कार्य भिन्न भिन्न है। हाँ समझ में आया। शुभ भाव का कार्य दुख रूप है, भगवान का कार्य आनंद रूप है, संवर का कार्य शांति रूप है, निद्रा का कार्य हित रूप सुख की वृद्धि का कार्य है, मोक्ष पूर्ण सुख की वृद्धि का है। समझ में आया। अरे शुभ भाव वो तो राग रूपी कार्य है, दुख रूप कार्य है। ये तत्व का मार्ग ही कार्य है। मार्ग क्या है? पाठ में मार्ग है। नव तत्व का मार्ग, नव तत्व का कार्य। समझ में आया। हाँ। अरे जी पुण्य पाप आश्रम उसका कार्य तो दुख रूप है। ये आत्मा का संबंध का कार्य हो जाएगा उससे। समझ में आया। हाँ तो कार्य स्वरूप पीड़े भाई मार्ग क्या तुम पहला पूछे है क्या ये नवे तत्व की पर्याय ना जीव जीवना भेद बे तत्व उसका भेद हाथ नवे का कार्य भिन्न भिन्न है। पहले से ना निर्णय करना चाहिए। हाँ जी शास्त्र पुकार करते हैं। नास्तिक को दुख का अनुभव है ना, सम्यक दर्शन में कारण। हाँ कारण होता है दुख का अनुभव। दुख का अनुभव सम्यक दर्शन में कारण होता है। सम्यक दर्शन तो सुख का कारण है। उसमें वो आया नहीं छोटा वाला त्याग वगैरह माने सुनते थे। नहीं ये तो श्रीमद बात ये नहीं। हाँ तो ढालना चढ़ाना आता है। आत्म हित हेतु त्याग वैराग दुख का कारण माने कष्टदान चारित्र आनंद ज्ञानी कष्टदान मानते हैं। ये तो आनंददायक है। आते हैं ना वो चौढ़ाला पहलाना पंडित बहुत अच्छा किया है। ये तो वर्तमान में फेर हो गया था। पहला पंडित साधारण चढ़ावा करने वाला गागर में सागर भर दिया है। वो तो पाठशाला में चलते हैं पंडित। तो उसमें ऐसा लिखा है लोग। हाँ आपकी वजह से सब पंडित बिगड़ गए। हमारे क्या हमें तो भगवान मारे कहते हैं पंडित तो न हो तो हो हमारी साथ के विरोध करने के लिए वो विरोध हमारा करते नहीं कोई का कोई विरोध कर सकते नहीं है। तो मार्ग है ऐसा है। कोई का विरोध करे हमने तीर्थंकर वक्त भी विरोध। एक भाई तो लिखा है एक हितेशी दिल्ली वाला प्रकाश हितेशी है ना दिल्ली वाला એને तो एक बार लिखा था। मैं तो कहीं वांचो नहीं पुण्य लिखा था कि महावीर वक्त इतना हजारों महावीर से विरोधी महावीर जहाँ जहाँ जाते ત્યાં ત્યાં जाते थे। એવું लिखा लिखा ऐसा लिखा है। हाँ પણ એ कहते हैं आ तो इतना विरोधी भगवान जहाँ जाते हैं ત્યાં विरोध करने को जाते ऐसा कहीं चलाया हम तो देखा नहीं। बीजा शास्त्र ग्रंथ में उसको लाया था भाई हितेश है ना। हाँ सन्मति संधि छापते ना दिल्ली ये क्या चलाया था। कितना हजार महावीर का विरोधी महावीर जहाँ जाते थे जहाँ विरोध करने जाते थे। अच्छा ये तो जगत में चले उसमें कोई विशेष नहीं। हाँ कहते हैं गाथा समझती अप्पा मिली नाणमावो यनु परायो भावो जो सो छंडे बिणो जीव तो भावे अपसाओ। अर्थ हे जीव तू ज्ञानमय भगवान आत्मा को परमात्मा की आत्मा छोड़कर
अन तो दूसरे भाव है, उनको छोड़कर, समझे, अज्ञान में आत्मा को मुक्त हुआ। अन जो दूसरे भाव है उनको छोड़कर अपने शुद्धात्म स्वभाव को चिंतन कर, मुक्त तो ही विराट को मुक्त है, मोक्ष है, ये भाव समझे। केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की राशि, हा, भगवान तो अनंत गुण की राशि ढगला है, ढग है ना, ढग से क्या कहते हैं, ये तो क्या राशि क्या है, केवल ज्ञान, आप केवल ज्ञान की पर्यायी बात नहीं, अंतर एक ज्ञान, एक आनंद, एक शांति, एक ईश्वरता, एक कर्ता कर्म करुण संप्रदान अधिकानी शक्तियों जो है एक तद्दन निर्मल परिपूर्ण है। एक ही बता, वो केवल पर्याय की बात नहीं, केवल ज्ञान आदि है, केवल ज्ञान आदि, ज्ञान से लिया ना, ज्ञान में है ना मूल पाठ में, अनंत गुणों की राशि, अनंत गुण की राशि, भगवान अनंत गुण का ढग, हा, एक समय की पर्याय में भूल है, एक समय की वस्तु त्रिकाली भूल एक समय की, दो समय में रहती नहीं, पहले समय नाशवत, दूसरा समय उत्पन्न होता है, एक समय की संसार। भगवान आत्मा केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की राशि, आत्मा उससे जुड़े, यूं एम कहते हैं, इससे जुड़े कौन, मिथ्यात रागादि अंदर के भाव, मिथ्यात रागद्वेष अंदर का भाव, ये भी अनंत गुण की राशि आत्मा से जुड़े, और बाहर के प्रभाव शरीर वाणी मन आदि सब ऐसे शुद्धात्मा से विलक्षण प्रभाव है। देखो शुद्धात्मा भगवान जी अनंत गुण की राशि, उससे विलक्षण विपरीत लक्षण वाला, ये शुभ राग पण स्वभाव का लक्षण से भगवान का स्वरूप से विलक्षण है, विपरीत लक्षण वाला है। बंध भाव है, बंध भाव है, राग भाव, बंध भाव, विश्व माया है। ये शुद्धात्म स्वभाव को आत्मा से ये मिथ्यात आदि अंदर के भाव, ये विलक्षण प्रभाव है, उनको छोड़कर केवे छोड़वा पाना, माए तो एक समय की पर्याय में है, द्रव्य ऊपर दृष्टि देने से ये सब छूट जाता है। समझ में आया? मातम तो प्रभु आत्मा का है, परमात्मा स्वरूप भगवान वो तरफ का जहाँ झुकाव हुआ, ये पर्याय सब दूर रह गई, मलिन पर्याय दूर रह गई, अनुभव में अनुभव का विषय में वो आया नहीं, क्या किया? उनको छोड़कर केवल ज्ञानादि अनंत तत्व स्वरूप देखो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, ऐसे कार्य समयसार, एक कार्य समयसार पर्याय, द्रव्य कारण समय, कार्य कारण समयसार, त्रिकाली भगवान एक कारण समयसार, त्रिकाली कारण दो भेदे, ये त्रिकाली कारण समयसार यानी मोक्ष का मार्ग एक कारण समयसार। वक्त થઈ ગયો, વિશેષ આવી ગયો। प्रथम मनोरी अंतान ऐसा आते हैं, तो उसमें ऐसा आते हैं, नमो लुई त्रिकालवर्ती सौर्यंतान, ऐसा आखा पाठ ऐसा है। नमो लुई सौ
त्रिकालवर्ती हरिहंताणम। दौड़ने का पाठ है। कुछ टूंका शब्द करते नमो लोई सब सावनम, ये 5-4 पद में ले लिया। नमो लोई सब हरिहंताणम, वायुर्याणम, नमो लोई सब उज्जायाणम, नमो लोई सब सावनम। पाठ ऐसा है। पीछे त्रिकालवर्ती उसमें मुंबई देना। नमो लोई सब त्रिकालवर्ती हरिहंताणम। कितनी व्यापकता तो देखो। करते हैं शास्त्र की रचना में प्रथम तो भी नमो लोई सब त्रिकालवर्ती हरिहंताणम। अजी तो ये हरिहंत होने वाला है, ये नरक में होता है अभी तो, एक इंद्र में होगा वो तो। मन भविष्य में वो होने वाला है, उसको अभी नमस्कार करते हैं। नमो लोई सर्व त्रिकालवर्ती, त्रिकाल में वर्तनारा, क्योंकि त्रिकाल में त्रिकाल के जानने वाला को जगत में विरोध नहीं। अनादि से सर्वज्ञ चलाते हैं तो कहते ऐसे अनादि अनंत काल सर्वज्ञ होगा। अभी तो अनंत काल होगा, भविष्य का अंत नहीं। उसमें भी जो हरिहंत होगा तो यहाँ तो कहते हैं प्रभु मैं तो त्रिकाल नमो लोई सौ त्रिकालवर्ती हरिहंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं तो प्रभु आपकी स्तुति करने में पहले नमो लोई सौ त्रिकालवर्ती सिद्धाणम। अभी तो सिद्ध हुआ ही नहीं, पर भविष्य में होगा। उसको भी गणधर दे शास्त्र रचने के काल में प्रथम ये नमस्कार करते हैं। या दूसरी बात कहना है, ये अनंत अरिहंतो भूतकाल में हुआ, वर्तमान संख्या का लाखों है, भविष्य में अनंत होगा। सबकी सत्ता की प्रतीति आ गई है। सत्ता को स्वीकार, सत्ता की समझ में आया। ऐसे अनंत सिद्ध हुआ, वर्तमान अनंत सिद्ध है हुआ, वर्तमान संख्या होता है और भविष्य में अनंत होगा। प्रभु मैं सरल त्रिकालवर्ती सिद्धों को नमस्कार करता। निर्मल पर्याय प्राप्त अनंत सिद्ध भूत वर्तमान भविष्य की सत्ता जिसने स्वीकार किया, नमस्कार करने वाला की बात है। नमस्कार करने वाले की दृष्टि का समझ में आया। नमो लोई सौ त्रिकालवर्ती आयुर्याणम, तीजा पद है। नमो नमस्कार प्रभु मेरा लोक में सर्वकाल में वर्तने वाला आचार्य, जिसको गणधर नमस्कार करे वो बे तो अरिहंत ने स्थित तो पूर्ण परमात्मा, पर आ तो छुदमस्त है। भाई ये पद कोई अलौकिक है, लोग को साधारण कल्पित बैठे ऐसी चीज नहीं। नमो लोई सौ त्रिकालवर्ती आयुर्याणम, गणधर रचना करते काल में अपने से छोटा आचार्य हो
उसको यहाँ वंदन नहीं करे बाय में, પણ भविष्य में हुआ नहीं, अजी होगा, અને वर्तमान आचार्य अपने से छोटा हो, उसको नमो लोई में से निकाल नहीं देते। समझ में आया? नमो लोई सौ त्रिकालवर्ती आई आनंद, भविष्य में अनंत आचार होगा, इसकी सत्ता का यहाँ स्वीकार है। समझ में आया? वो लीमड़ा को तोड़ते हैं बाल कहते हैं, असंख्य जीव है। पूर्व का माता पिता भी असंख्य उसमें पड़ा है। लोगों को सत्ता की स्वीकार समझ में आया? એ રીતે પૂજ્ય ગુરુદેવે 73મી ગાથાનો ઘણો વિસ્તાર કર્યો. 74મી ગાથાનો વધુ વિસ્તાર હજી આવશે. આજના સ્વાધ્યાયમાંથી જે વાત મહત્વની છે તે જરા ફરીથી આપણે લઈએ છીએ. 73મી ગાથાની એક વાત છે. અહીંયા બીજા શાસ્ત્રની ગાથા એટલે અષ્ટપાઉરની ને બધી ગાથાઓ લીધી. એમાં એક વાત એ રીતે વાત આવી કે પઠન પાઠન સ્મરણ ચિંતન સ્તુતિ વંદના ઇત્યાદि અનેક ક્રિયારૂપ વિકલ્પો વિશે વિકલ્પો વિષ સમાન કયા છે, ઝેર સમાન કયા છે. અને આ જયારે પઠન પાઠનની વાત કરી એની પહેલા મૂળ વાત એ રીતે આવી, કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે પઠન પાઠનની રુચિ, તો ગુરુદેવે એમાં એવો ઉત્તર આપ્યો કે પઠન પાઠનની રુચિ રાગની રુચિ છે. પઠન પાઠનનો વિકલ્પ આવે છે પણ એની રુચિ થાય કે આ ઠીક છે, તેને આત્મા હે છે. શાસ્ત્ર અભ્યાસની જે રુચિ જે છે એમાં રુચિ કેવી રીતે હોવી જોઈએ એની અહીંયા સૂક્ષ્મતા છે. કેમ કેટલાક શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો ગમે છે અને કેટલાકનો કરવો નથી ગમતો, એ જયારે આપણે આપણી જાતને પ્રશ્ન પૂછીએ ત્યારે એ વાત ખ્યાલમાં આવે કે અમુક વસ્તુ ગમે છે અને અમુકમાં નથી ગમતું. એટલે જે ગમે છે એ રુચિ જે છે તો એમાં ગમે છે માટે થાય છે, આત્માને લક્ષ્ય નથી થતી. એટલે એવી જે રુચિ થતી હોય છે ને એ રુચિને હે કહી છે. એ રુચિ ખરેખર શાસ્ત્રમાં જે વાત આવે છે એના સ્વીકારની એમાં ભાવના નથી, એના સ્વીકાર માટેનો કોઈ પ્રયત્ન નથી, ને માત્ર કોઈ બીજા કારણથી પઠન પાઠનની રુચિ હોય છે. તો એવા પઠન પાઠનની રુચિ એ હે છે. ને કદાચ એમ કે શાસ્ત્ર આપણે વાંચવા જોઈએ, વાંચીએ એમ કરીને જો પઠન પાઠન કરે તો પણ એ શુભભાવ છે, અને શુભભાવ છે એ હે છે. અને પછી અષ્ટપાઉલમાં નિયમસારમાં એ બધેથી આ વાત લઈ અને ગુરુદેવે અહીંયા આ વાત કરી કે પઠન પાઠન સ્મરણ ચિંતન સ્તુતિ વંદના ઇત્યાદિ અનેક ક્રિયારૂપ વિકલ્પો વિષ સમાન કયા છે. એ વાત ત્યાં 189 કળશની વાત લીધી. એ પછીથી 74મી ગાથાની અંદર જે વાત છે એ પણ અગત્યની છે. 74મી ગાથા ઉપરના પ્રવચનની અંદર શરૂઆતમાં જે વાત કરી, ગુરુદેવે એમ કહ્યું કે ભગવાન તો જ્ઞાનમય આત્મા છે, આનંદમય, જ્ઞાનમય. જ્ઞાનમય કહેવામાં મુખ્ય જ્ઞાન છે ને, એ જ્ઞાન પોતાને જાણે છે અને પર ગુણને જાણે છે. ત્યાં સુધી વાત આપણને બરાબર લાગે, સમજાય પણ છે કે આત્મા પોતે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. જેમ કહીએ છીએ તેમાં જ્ઞાન જે છે તે કેવું છે કે જ્ઞાન પોતે
બીજા ગુણોના પરિણમનને ભવનને પણ જાણે છે. અને પછી આગળ કહે છે કે પરગુણ પોતાને જાણતા નથી. પરગુણને જાણે છે, એ જ્ઞાન પોતાને જાણે છે અને પરગુણને પણ જાણે છે, પણ પરગુણ પોતાને જાણતા નથી. અને પછી તો એટલે સુધી વાત લીધી કે સમ્યક દર્શન, ચારિત્ર, આનંદ એ પોતાને જાણતા નથી, પરને જાણતા નથી. જો આ સમ્યક દર્શન, ચારિત્ર, આનંદ એ પોતાને જાણતા નથી, પરને જાણતા નથી, અસ્તિત્વ રાખે છે, જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ છે અને જ્ઞાન સ્વપરને જાણે છે, એટલી એની તાકાત છે. એટલે પોતાના જ ગુણો, જ્ઞાન સિવાયના બીજા બધા ગુણો છે એનું પરિણમન થતું હોય છે, પણ એ ગુણ બીજા ગુણને જાણતા નથી. જ્યારે જ્ઞાન ગુણ એવો છે કે અનંત ગુણના ભવનને જાણે છે, અનંત ગુણને જાણે છે. એટલે આત્માને મુખ્યપણે જ્ઞાન સ્વરૂપ કહીએ છીએ. અને એમાં જ આગળ ગુરુદેવે સમજાવ્યું છે કે જ્ઞાનમય એમ કેમ કહ્યું કે જ્ઞાન સ્વરૂપ જ એવી ચીજ છે જે પોતાને જાણે છે, એમ જાણે, જેમ છે તેમ પોતાને જાણે છે, પર છે એમ પણ જાણે છે, પર છે તો પરને પણ જાણે છે. દર્શન, ચારિત્ર, આનંદ, અસ્તિત્વ એમાં એ શક્તિ નથી, જાણવાની શક્તિ નથી. આ દર્શન એટલે અહીંયા શ્રદ્ધા લેવાનું છે. દર્શન એટલે શ્રદ્ધા, ચારિત્ર, આનંદ, અસ્તિત્વ, આ બધા એવી શક્તિ, એવા ગુણ છે, તો એમાં આવી શક્તિ નથી, જાણવાની શક્તિ નથી, એમાં જાણવાની શક્તિ નથી. એ કારણે જ્ઞાનમયી પરમાત્મા એમ કહ્યું. નહીતર તો અનંત ગુણમય છે, છતાં પણ જ્ઞાનમય એમ જયારે કહેવામાં આવે છે, એનું આ રહસ્ય છે. જે જ્ઞાનની સાથે અવિનાભાવી અનંત ગુણ રહ્યા છે, જ્ઞાન સાથે અવિનાભાવી અનંત ગુણ રહ્યા છે. એટલે કે જ્ઞાન છે ત્યાં અનંત ગુણ છે, અને અનંત ગુણ છે ત્યાં જ્ઞાન છે. એમ હોવા છતાં પણ જ્ઞાનમય આત્મા એમ કહેવામાં આવે છે. ભગવાન જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા છે. આ બહુ મહત્વની વાત છે. અને પછી આગળના પેરેગ્રાફમાં પણ એક બીજી તરફ વાત લીધી છે કે શાસ્ત્રથી સાંભળ્યું કે આ આત્મા શુદ્ધ છે, જ્ઞાનમય છે, એમ વિકલ્પથી જાણ્યું. એ વિકલ્પથી જાણ્યું એ ચીજ નથી. વિકલ્પથી જાણ્યું કે આત્મા જ્ઞાનમય છે, શાસ્ત્ર દ્વારા જાણ્યું, ગુરુદેવના પ્રવચન દ્વારા જાણ્યું. તો ગુરુદેવ કે છે એ વિકલ્પ દ્વારા જે કંઈ જાણ્યું એ કંઈ પુરુષાર્થ નથી. અંતરમાં જઈને પરદ્રવ્યને છોડીને શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન કર. અને ધ્યાન કરે છે તો એમાં જ્ઞાનમાં એને પોતાનું સ્વરૂપ જણાય છે. એટલે કહે છે કે ચારે બાજુથી વિકલ્પને હટાવીને ભગવાન પૂર્ણ આનંદ પ્રભુ તું છો એને ધ્યાનનો વિષય બનાવો. જો ધ્યાનનો વિષય બનાવવાની વાત કરી છે, એટલે જેને ધ્યાનનો વિષય બનાવવો છે એને પૂર્ણપણે જાણે અને પછી એને ધ્યાનનો વિષય બનાવે છે. ભગવાન પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એવો નિર્ણય કરી અને એ ધ્યાનનો વિષય અને એનું ધ્યાન કર. ધ્યાનનો વિષય બનાવ અને ધ્યાન કર. એને ધ્યાનનો વિષય બનાવવો. અત્યારે આપણે ધર્મ ધ્યાન આરાધનાની અંદર આ જ વાતની મુખ્યતા કરીએ છીએ. એટલે અહીંયા પણ ગુરુદેવે એ જ વાત આપણને કહી છે. તો આજે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.